Welcome guys, welcome to Edu Home once again. So today we are going to learn a very important and a very interesting topic, section 56 to 10 of Income Tax Act 1961 relating to gifts. This section covers two types of gift. One where there is no consideration. In return you are not giving anything. And the second where you are paying in return something but that is inadequate. Okay, so three part में this video has been divided. Number one, gift of money. Number two, gift of immovable property, where there is without consideration or inadequate consideration. And third is gift of movable property, again without consideration or inadequate consideration. ये सेक्शन रिसीवर ऑफ द गिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सेक्शन जो टैक्स इम्पोज करता है दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसीवर ऑफ द गिफ्ट. ओके, नाउ लेट स्टार्ट वन बाय वन. नंबर वन, गिफ्ट ऑफ मनी. आराम से सुनिए. अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर यू रिसीव गिफ्ट ऑफ मनी in excess of 50,000, then the entire amount is taxable in your hand, in the hand of receiver, under the head income from other source. Any doubt? रिसीवर के हाथ में अगर पूरे साल में 50,000 के ऊपर का अगर कैश गिफ्ट मिलता है तो आपको रिसीवर को टैक्स देना होगा अदर सोर्सेस के अंदर. लेट्स रीड. एनी पर्सन receiving money in excess of 50,000 in a financial year taxable under the head income from other sources. Now कुछ पॉइंट्स जो दिमाग में आते हैं. पहला, सर 51,000 अगर एक साल में मैं लेता हूं तो क्या मुझको 51,000 पे टैक्स देना होगा? द आंसर इज यस. 50,000 के ऊपर में जाने से ये नहीं है कि खाली एक्सेस अमाउंट पे टैक्स देना होगा. यू हैव टू पे द टैक्स ऑन द इंटायर अमाउंट वंस इट एक्सीड्स 50,000. की पॉइंट वन, entire amount will be taxable. Sir, if I receive 20,000 today and I receive 40,000 at a later stage, should I have to pay tax? The answer is yes. Aggregate payment, पूरे साल का total gift total करेंगे and then we will see कि 50,000 को cross किया है कि नहीं किया. If it exceeds, then we have to pay the tax under other source. Aggregate payment in a financial year will be considered. Who will pay the tax? Already I have said receiver will pay the tax. जिसको गिफ्ट मिल रहा है, so be cautious while receiving gifts. Next, it is already I have explained, receive 30,000 from A and 30,000 from B. Sir, I have received gift of 30 from two A and B. Do I have to pay tax? The answer is yes. Payer कौन है is irrelevant. Who are the payers is irrelevant. The only important point is अमाउंट विच शुड बी विद इन 50,000. 50,000 होना चाहिए या उसके अंदर में. सो इफ इट एक्सीड्स एंटायर 60,000 इज टैक्सेबल. आई थिंक गिफ्ट ऑफ मनी इज क्लियर. लेट्स मूव टू गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को आराम से सुनिएगा, दो पार्ट में डिवाइड है. एक में आप रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं, यू आर सिंपली रिसीविंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट. सेकेंड में यू आर पेइंग समथिंग इन रिटर्न. सो फर्स्ट सी gift of immovable property where there is no consideration in return. अगर value of the immovable property exceeds 50,000, value exceed 50,000, then the entire value is taxable. And when I am saying value, which value? Stamp duty value. So if you are receiving immovable property without any consideration as a gift and the value is more than 50,000 stamp duty value, then entire value, if the value of the property is 2,50,000, that you have to pay tax on entire 2,50,000. Clear? Inadequate consideration. Now you are purchasing immovable property but you are paying less than the value. When I am saying value, stamp duty value. तो what will be the tax? Simple, आराम से सुनो. अगर आप immovable property खरीदते हो at less than the stamp duty value, वैल्यू से कम पे खरीदते हो, जो कंसीडरेशन पे कर रहे हो वो कम दे रहे हो, उसका जो डिफरेंस है, अगर डिफरेंस ऑफ द अमाउंट एक्सीड्स हायर ऑफ द टू, मतलब 50,000 रुपीज और 10% ऑफ द कंसिडरेशन विच एवर इज हायर को अगर डिफरेंस अमाउंट क्रॉस कर जाए, देन यू हैव टू पे द एंटायर डिफरेंस अमाउंट
under the head income from other source. Let me give you an example so that you understand better. एग्जाम्पल देखिए यहाँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सपोज कीजिए कोई प्रॉपर्टी की 5 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. यू हैव परचेज द प्रॉपर्टी एट अ प्राइस ऑफ 3.5 लाख. आपने 3.5 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी. जो डिफरेंस हुआ मतलब कितना कम में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, 1.5 लाख. आपने 1.5 लाख कम दिया है. नाउ द लॉ सेज इफ दिस डिफरेंस इज exceeds, if this difference exceed higher of the two, higher of the two देखिए पहले तो higher of the two क्या है, 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन इज 3.5 लाख, उसका 10% क्या होगा, 35,000. हायर इज 50,000. सो 1.5 lakh, entire difference of 1.5 lakh will be taxable if it exceed higher of the two, and hence it is exceeding because 50,000 is less than 1.5 lakh. The entire 1.5 lakh will be taxable under the head income from other source. So now let's read inadequate consideration. Stamp duty value exceeds the consideration. Now the entire difference will be taxable. When it is taxable, if the difference amount exceeds higher of the two. Higher of the two is 50,000 and 10% of consideration. If it exceeds, the entire difference will be taxable in the hand of receiver of property under the head income from other source. I hope it is clear. Let's move to movable property. Movable property is same as immovable property. थोड़ा सा चेंज है, देखिए इसके भी दो कैटेगरी है. नंबर 1 विदाउट कंसिडरेशन, यू आर रिसीविंग इट एज अ गिफ्ट सिंपली. सो हेयर अगर फेयर मार्केट वैल्यू exceeds 50,000, the entire fair market value will be taxable as income from other source. Clear? सर अगर फेयर मार्केट वैल्यू 2,60,000 हुई, the entire 2,60,000 will be taxable. Now come to inadequate consideration. You have purchased movable property, but you have purchased it at a less price. तो अगर the fair market value से कम पे खरीदी है, so fair market value exceeds the consideration, and the difference amount, if the difference amount exceeds 50,000, the entire difference will be taxable. So fair market value जो है वो ज़्यादा है consideration से, so the entire difference amount will be taxable in the hands of receiver, property जिसको मिली है, okay, under other sources. So clear a gift of money, gift of immovable property and gift of movable property. Now when we talk about the property, what do you mean by property? कुछ specified property ही covered है यहाँ पे. देखिए property का मतलब यहाँ पे क्या है, immovable property, land, building, share, security, jewelry, archaeological collection, drawing, painting, sculpture, art of work, bullion, ये सारे कैपिटल एसेट ही कवर्ड है. मतलब कि अगर मैं कार, फर्नीचर, दोज आर माई पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, दोज आर नॉट कवर्ड. उस पर ये 56 सेक्शन 56(2)(10 जो है नहीं लगेगा. ओके, कार, फर्नीचर वगैरह पर्सनल मूवेबल इफेक्ट. नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैं गिफ्ट रिलेटिव से लेता हूँ, गिफ्ट अगर मुझे रिलेटिव से मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है. और भी सारे पॉइंट है, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हु आर माई रिलेटिव. एक इंडिविजुअल के लिए उसके रिलेटिव कौन है. नाउ प्लीज लिसन केयरफुली. एक इंडिविजुअल है, उसके केस में कौन कौन उसका रिलेटिव माना जाएगा, वी विल सी बाय वे ऑफ दिस चार्ट. वेरी सिंपल चार्ट, जस्ट फोकस. In case of an individual, his spouse is his relative. Individual के केस में the spouse of individual is relative. Very clear? Now, brother and sister of the individual are his relative. मतलब अगर मैं भाई से या बहन से गिफ्ट लेता हूं तो वो एग्जेम्प्ट है. सर वेरी क्लियर. अगर मैं अपने स्पाउस के भाई या बहन से, जिसको हम अगर डिफरेंट लैंग्वेज में बोले तो ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, उनसे भी गिफ्ट लेता हूं तो भी एग्जेम्प्ट है. पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे स्पाउस के पेरेंट्स, बोथ आवर पेरेंट्स, उनके भी अगर मैं भाई और बहन से
गिफ्ट लेता हूँ तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड, मतलब उनसे भी अगर मैं गिफ्ट लेता हूँ तो एग्जेम्प्ट है। सर वो आर दिस, अरे आपके फादर के अगर आपके भाई है ताऊ जी, या आप उनकी बहन बुआ जी, आपकी मदर है उनके भाई मामा जी, या उनकी बहन मासी जी। सो और आपके इन लॉज मतलब आपके स्पाउस के भी जो भाई जो पेरेंट्स हैं उनके भाई बहन भी कवर्ड है। सो क्लियर है। सो इंडिविजुअल के केस में उसकी स्पाउस उसकी रिलेटिव है, और ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस एंड ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ बोथ देयर पेरेंट्स, इन दोनों के पेरेंट्स की जो ब्रदर सिस्टर है उनसे भी आप गिफ्ट ले सकते हैं। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट। एक इंडिविजुअल के लीनियल असेंडेंट्स के बारे में बात करते हैं। असेंडेंट्स का मतलब होता है सेम लाइन, मतलब आपके फादर, मतलब अगर आप मेल हो तो आपके फादर और आपके ग्रैंडफादर, ये जो लाइन है उसको बोलते हैं लीनियल असेंडेंट्स। तो फादर ग्रैंडफादर के लाइन से अगर आपको गिफ्ट मिलता है एग्जेम्प्ट। डिसेंडेंट्स कौन हो गया, अगर आप मेल है तो सन और ग्रैंड सन, ये लाइन जो है इनसे भी अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ओके सर, सो फादर ग्रैंडफादर सन ग्रैंडसन वाला लाइन, ये इनसे भी अगर गिफ्ट मिलता है दोज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। नाउ लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ स्पाउस भी कवर्ड है, मतलब स्पाउस के लीनियल असेंडेंट्स कौन हो गए, स्पाउस के लीनियर असेंडेंट्स हो गए, अगर स्पाउस सपोज कीजिए फीमेल है तो वो आपकी मदर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ। स्पाउस अगर मेल है तो उसका फादर आपके लिए फादर इन लॉ और ग्रैंड फादर इन लॉ। ओके, डिसेंडेंट्स, स्पाउस अगर आप इंडिविजुअल मेल हो तो आपकी स्पाउस आपकी वाइफ, उसके डिसेंडेंट्स कौन होगी, उसकी डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर। ओके, तो वो कवर्ड है। तो लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ स्पाउस कवर्ड है। क्लियर है। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, स्पाउस ऑफ ऑल दिस पीपल, मतलब द ब्रदर एंड सिस्टर, आपके भाई और आपकी बहन आपके रिलेटिव है, उनके स्पाउसेस, जैसे आपकी बहन है तो उनका हस्बैंड, आपका भाई है तो उसकी वाइफ, ये भी आपके रिलेटिव है। आपके स्पाउस के जो भाई बहन है उनके जो स्पाउस है वो भी कवर्ड है। करेक्ट। आपके दोनों के जो पेरेंट्स थे ना, उनके भाई बहन कवर्ड थे ना, उनके स्पाउसेस भी कवर्ड है। आपके लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट्स के स्पाउस भी कवर्ड है। सर वाई स्पाउस आर कवर्ड, आप सोचिए लीनियल असेंडेंट होता है फादर, तो क्या मदर कवर नहीं होगी, तो फादर की स्पाउस हो गई। ग्रैंडफादर कवर्ड है, क्या दादी कवर नहीं होगी, तो ग्रैंडफादर की जो वाइफ है वो कवर हो गई। आपका बेटा जो है आपका लीनियल डिसेंडेंट है, ठीक है, तो उसकी वाइफ भी तो कवर होनी चाहिए, तो उसकी वाइफ भी कवर हो गई, तो स्पाउसेस भी कवर्ड है। लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट वाइफ के तो कवर थे, उनके स्पाउसेस भी कवर्ड है। ओके, एंड HUF के केस में एनी मेंबर ऑफ HUF। So I hope I was able to make you understand through this chart. Once again, I'll say, so in case of an individual, my brother and sister, my spouse brother and sister, and हम दोनों के जो पेरेंट्स हैं उनके ब्रदर एंड सिस्टर कवर्ड है। उसके बाद में लीनियल असेंडेंट्स एंड लीनियल डिसेंडेंट्स, मेरे लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, मेरे स्पाउस के लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट दोनों कवर्ड है, और इन सब कैटेगरी के जो स्पाउसेज है वो भी कवर्ड है। I hope the definition of the relative is very clear. Okay. Now let's move to the last slide. That is gift relative के case में the gift you can take it is exempt. What all other categories are there? So if you are receiving gift on the occasion of marriage pay, that is also exempt. If you receive gift by way of will or inheritance, that is also exempt. If you receive in at the time of death, if a person is gifting, that is also exempt. And these are the rest of the details. Let's read one by one. Local authority से gift मिलता है exempt. सेक्शन 10 क्लॉज 23C में फंड्स एंड फाउंडेशन है, उनसे गिफ्ट मिलता है एग्जेम्प्ट। सेक्शन 12AA 12AB 12A में जो ट्रस्ट है उन सब से भी आपको गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। अगेन सेक्शन 10 में क्लॉज 23C में ये सब क्लॉजेस के अंदर जो फंड्स और ट्रस्ट है उससे आप गिफ्ट ले सकते हो। सेक्शन 47 में देयर आर लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कंसीडर्ड एज
ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन, मतलब वो ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं लगता। अगर कैपिटल गेन नहीं लगता तो ये सेक्शन भी अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप कोई इंडिविजुअल से मिलता है बाई अ ट्रस्ट क्रिएटेड और स्टैब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ दैट इंडिविजुअल, वो भी एग्जाम्प्ट है। एंड लास्ट, एनी अदर पर्सन प्रेस्क्राइब। सो ये कैटेगरी में 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी ये है कि रिलेटिव से मैरिज पे, डेथ के केस में, या फिर अंडर अ विल और इनहेरिटेंस में अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो दोज आर एग्जाम्प्ट। So I hope this important section or interesting and a small section I was able to make you understand. So if you want or any assistance, you can connect me on these details and you can do the needful. Thank you.